ठीक, विल स्टार्ट नाउ। ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होगा। यहां पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इज चेंज टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, and in this galvanic cell, anode is the negative electrode. Anode is the negative electrode. यहां पर भी क्या होगा, at anode there will be oxidation. There will be oxidation. तो क्या होता है ये, what is oxidation बताइए। What is oxidation? Addition of oxygen and removal of hydrogen. ठीक, नेक्स्ट। और क्या बताएं? Okay, I will tell you. Third one is, here cathode is positive electrode. See, in cathode, if you make any mistake, देखिए यहां पर कैथोड में T क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड in galvanic cell, and at cathode there is reduction takes place. So in both the cells, at anode there is oxidation, at cathode there is and this one will be spontaneous. This will be spontaneous. Okay, इसको रब कर दें अभी। Can I rub this? Can I Yes, rub sir. this? Sir. Okay. Now I'm telling you कि क्या क्या होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। See, what is oxidation? कौन बता रहा था? एडिशन ऑफ, बोलिए, एडिशन ऑफ Oxygen. रिमूवल ऑफ Hydrogen. removal of hydrogen. This is one definite definition. Second one, कोई बताए कोई और? Removal of electron. Loss of electron or removal of electron is oxidation. Okay. Third बताइए। Third one is important one. Increase in oxidation number. Increase in oxidation state or number. That is called what? अगर हम लिखते हैं Na gives Na plus plus electron, तो यहां आपको दिख रहा है कि Na जो है वो इलेक्ट्रॉन एक लूज किया, मींस Na is oxidized to Na plus. Okay, Na is oxidized to Na plus. Okay, देखिए यहां पर ये अगर हम चेक करें इसको इससे, तो यहां पर Na का OS क्या है,
Na का OS कितना है 0, यहाँ कितना है +1, यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज इन OS, there is increase in OS. Okay, so Yes, loss of sir. electron is what? Increase in OS is also oxidation. ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, इसका यूज बहुत होगा क्योंकि बहुत जगह पे हम जान नहीं पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, वहां पर you will know by the change in OS. If it is increase in OS, then it is oxidation. Okay? अब Yes, sir. देखिए रिडक्शन क्या होता है, बताइए, व्हाट इज रिडक्शन? Addition of hydrogen and Hydrogen removal of oxygen. फाइन. सेकंड वन, addition of electron. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गुड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Electron. थर्ड, Decrease in oxidation number. decrease in oxidation number. Hopefully we'll be able to go. Who knows? But Decrease in oxidation number. yes. And this is a Please mute your mic. जिसका माइक, सुन ननद के भाई घने झूठे लाड लड़ावे से please mute everyone. Decrease in OS is called reduction. See, suppose I write MnO4 minus gives Mn2 plus. MnO4 minus gives Mn2 plus. ठीक है, बताइए क्या हो रहा है यहां पर, रिडक्शन, और बताइए क्या होगा इसमें, इस रिएक्शन में क्या, कैसे जान पाएंगे आप? देखिए Mn का OS कितना यहां पर है, बोलिए, Mn का OS क्या है यहां पर? +7. +7. यहां कितना है +2. ठीक है, so there is decrease in OS, so it is reduction. Okay, if we write Cr2O7 2 minus gives Cr3 plus. Okay, तो कितना यहां पर है Cr का OS +6, यहां कितना हो गया +3. अगेन देयर इज डिक्रीज इन OS, तो ये भी क्या हुआ, रिडक्शन. ओके, Yes, sir. now I'm coming to the topic. So first we will see the galvanic cell. Or electrochemical cell, that is galvanic cell. It is a type of electrochemical cell. देखिए यहां पर क्या हुआ, ये सपोज यहां पर हमने ये लिया है कि जिंक स्ट्रिप, gets dipped in zinc sulfate solution. In the beginning, देखिए शुरू में क्या होगा, जितने जिंक आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, सल्फेट आयंस. ठीक है, मींस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन द स्टार्टिंग. और इस तरफ यहां ले लेते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल. ये हो गया एक हाफ सेल. ये हो गया दूसरा हाफ सेल, जहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहां पर ये है कॉपर सल्फेट, और यू कैन से कॉपर क्लोराइड, एनी सॉल्ट यू कैन टेक ऑफ कॉपर. इनको जोड़ दिया यहां पर ये टू मेजर द करंट. ठीक है, इसको जोड़ दिया आपने किसमें, नेगेटिव टर्मिनल से. एंड कहां जोड़ दिया इसको,
with the positive terminal. तो ये वाला जिंक क्या हुआ, एनोड, कॉपर क्या है, कैथोड। यहां पर चेक कर लीजिए ऐसे आप, ये इसके वायर को यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, अगर सेल वर्क कर रहा है मींस यू हैव डन द कनेक्शन इन द राइट वे, मींस जिंक इज एनोड, कॉपर इज कैथोड। ओके, एट एनोड सी व्हाट हैपेंस, एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो वहां पर क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया फ्रॉम जिंक आयन, एंड जिंक इलेक्ट्रोड is oxidized to what, Zn2 plus. That Zn2 plus ions go into the solution, वो यहां आ गया। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जिंक आयन और SO4 आयन दोनों इक्वल अमाउंट में थे। अब क्या हो गया, आफ्टर द रिएक्शन इन द हाफ सेल, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, Zn2 प्लस, वो कहां डिसॉल्व हो गया, इस सॉल्यूशन में। मींस कि यहां पर क्या हो रहा है, जिंक आयन का बढ़ गया कंसंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन, बढ़ रहा है यहां पर। ठीक है ना, ये अब इस तरफ आ गया इलेक्ट्रॉन आपका, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। अब देखिए एट कैथोड क्या हुआ, एट कैथोड कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन, ये जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है ये, इट इज इन दिस फॉर्म, कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन गेन्स द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, दिस कॉपर is deposited over this copper electrode, और यहां पर क्या हुआ, जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये इसका डिक्के हो जाएगा, ये पतला होता जाएगा ये, और यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये कॉपर विल बी डिपॉजिटेड ओवर दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, तो जो कॉपर आयन यहां पे था वो कहां बदल गया, कॉपर में। तो इस वाले सेल में क्या हुआ, सल्फेट आयंस जो हैं इनका बढ़ गया कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या बढ़ गया, यहां बढ़ गया जिंक आयन का, यहां बढ़ गया। तो इधर क्या हो गया, देयर इज इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या हो गया, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। ओके, Yes, sir. ठीक, तो यहां पर इंक्रीज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या इंक्रीज हो गया, नेगेटिव चार्ज। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, वो रुक गया, विल बी स्टॉप्ड। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहां पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो गया। ठीक, तो यहां पे करते क्या है ये, वी यूज सॉल्ट ब्रिज, यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। यहां पर सॉल्ट ब्रिज में क्या होगा, सपोज यहां पर ले लिया आपने ये पेस्ट ऑफ KCl, यहां पर आप वही लेंगे, वही सॉल्ट लेंगे जिसमें दोनों आयंस का जो माइग्रेशन स्पीड है, माइग्रेशन स्पीड ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आयन, जो भी आप सॉल्ट लें, केटायन एंड एनायन मस्ट हैव नियरली सेम माइग्रेशन स्पीड। ठीक है, तो ओके, तो आपने यहां क्या ले लिया, मान लीजिए यू कैन टेक KCl, यू कैन टेक पोटेशियम नाइट्रेट एज वेल। ठीक है,
अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या बढ़ गया था, पॉजिटिव चार्ज, तो इस वाले एंड पे यहां पे क्या आएगा, Cl माइनस आयन, इधर क्या आएगा, K प्लस आयन। दिस Cl माइनस क्या करेगा, ये Cl माइनस आयन विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे क्या होगा, द पॉजिटिव चार्ज यहां पर K प्लस क्या करेगा, वो विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस नेगेटिव चार्ज। तो फिर क्या हुआ, ये सब न्यूट्रलाइज हो गया, ये जो यहां पर क्या इंक्रीज था, नेगेटिव चार्ज का। फिर सेल क्या हुआ, वर्क करना शुरू कर दिया। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या हुआ बताइए, सॉल्ट ब्रिज Maintain electrical neutrality. maintains the electrical neutrality, maintains the electrical neutrality of cell। और काम क्या इसका है बताइए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल, और काम क्या है इसका है, टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट बाय द फ्लो ऑफ आयंस विदाउट इंटरमिक्सिंग द टू सॉल्यूशन। तो क्या करता है ये, कंप्लीट्स द इनर सर्किट, और क्या करता है ये, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। ओके, तो ये हो गया एक हाफ सेल में एट एनोड, ये कहां हो गया, एट कैथोड। अब हम दोनों अगर हम कर दें ऐड, तो क्या आपका आएगा, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव Zn2 प्लस Cu। दिस इज द सेल रिएक्शन, दिस इज द सेल रिएक्शन। ठीक, तो जो सेल रिएक्शन आपका होगा ये, इससे हम जान सकते हैं कि कैथोड क्या है और एनोड क्या है। ठीक है, और इस सेल को हम इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, सेल को बाय सर्टेन कन्वेंशन। देखिए ऐसे यहां पर ये जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट, Zn2 प्लस इन द सेल रिएक्शन। तो जिंक क्या होगा, एनोड, जिंक क्या होगा, एनोड, बिकॉज एट एनोड देयर इज ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो गया, ये कॉपर आयन, ये क्या हुआ, रिड्यूस टू कॉपर, तो कॉपर क्या हो जाएगा, कैथोड, जिंक क्या होगा, एनोड। ठीक है, Yes, sir. हो गया, रब करें इसको। सर एक डाउट है। सर मुझे एक हाँ कोई बताइए, क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए बताइए, जतिन। बताइए। हाँ बोलिए नितिन। जतिन बोलिए क्वेश्चन। भाई जिनके क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए, सर ने 2 मिनट का टाइम दिया है। नितिन पूछिए। सर अगर सर हम सॉल्ट ब्रिज ले रहे, जिस तरह KCl होगा, KNO3 NH4Cl, तो सर हाँ। ये फिर सर जो जिंक सल्फेट है सर, वो उसके साथ रिएक्ट भी तो कर सकता है सर, जिंक Cl और ट्वाइस बन जाएगा, या K2SO4 बन सकता है सर। ऐसा क्यों नहीं होता सॉल्ट ब्रिज में, अगर कोई आयन पास आउट करे तो वो रिएक्ट नहीं होता, रिएक्ट तो किसी से भी हो सकता है, क्योंकि जिंक को देखिए, स्टेबल जो फॉर्म में। जो यहां पर जिंक आयन बढ़ गया यहां पर ये, और यहां पे क्या क्या बढ़ गया था, सल्फेट आयन। यस सर। ठीक है, जो यहां पर Cl माइनस है सॉल्ट ब्रिज में, करे क्या ये, दिस विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ यहां पर। ठीक है, फिर वही सर अगर रिएक्ट कर जाएगा ये इसके साथ ZnCl, तो सर फिर रिएक्शन तो सर फिर वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो सर करंट तो पास होगा नहीं, क्योंकि वो एक स्टेबल सर नहीं, देखिए करंट को, इलेक्ट्रॉन के फ्लो कौन रोक रहा है, जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था यहां पर। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस Cl माइनस आयन,
यस सर। ठीक है, तो अब Yes, यहां sir. पे क्या हुआ, यहां पर कम हो गया पॉजिटिव चार्ज, या वो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया ना इससे। यस सर। तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस नहीं है, तब क्या होगा, इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा, इसका फ्लो क्या होगा, शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो सर फिर एक ऐसा इंस्टेंट भी आएगा कि Cl नेगेटिव जो था सर वो भी उसके बराबर हो जाएगा Zn2+ के, तो सर फिर तभी भी नहीं होगा, फिर भी रुक जाना चाहिए उस। कब रुक जाएगा वो, सर Cl नेगेटिव भी सर फिर उसके पास जो अमाउंट देखिए नेगेटिव। जो ये इलेक्ट्रोड है जिंक वाला, ये जिंक कहाँ में चेंज हो रहा है, Zn2+ में। यस सर। ठीक है, तो यहां sir. पर क्या हुआ कि जिंक आयन यहां पे क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूअस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जिंक आयन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस क्या होगा, बढ़ता रहेगा। यस सर। ठीक है ना ये, यस सर। जिंक आयन जो होगा वो यहां पर कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ता रहेगा। जो इसके Cl आयन से क्या होगा, न्यूट्रलाइज होता रहेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होता रहेगा, बार बार कम होने से क्या होगा, सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। हाँ ओके सर। ठीक है ना। ओके सर। मतलब जो जिंक आयन यहां से है वो यहां से इधर चला जाएगा, यहां पर ये, ठीक, और इधर से क्या आएगा, Cl- इधर से आएगा। यहां पर क्या होगा, जो K+ इधर से इधर आ गया, ये करेक्ट क्या, वो दिस विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस नेगेटिव चार्ज ऑफ सल्फेट आयन। फिर दोनों में क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया यहां पर, ये यहां पर कम क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर इसका फ्लो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, इजिली हो जाएगा। अगर यहां पर बढ़ गया नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ये वाला ये। ठीक है, ओके सर। ओके, और कोई डाउट। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे सेल को, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा आपको। अगर हम यही सेल लें मान लीजिए, तो ये आपका हो गया मेटल मेटल आयन, तो जिंक डिप्ड इन जिंक सल्फेट लिखें चाहे Zn लिखें 2+, यहां उसका होगा कंसंट्रेशन, फिर डबल लाइन दैट इज सॉल्ट ब्रिज, फिर कॉपर 2+, उसका कंसंट्रेशन यहां पर सपोज C2 Cu। तो जो पहले लिखा होता है ये बाय कन्वेंशन दिस इज एनोड, और जो बाद में है वो क्या होगा, कैथोड। ठीक है, तो अगर आपको सेल से दिया रहेगा ये, तो हम जान सकते हैं यहां पर ये कि जिंक क्या होगा, एनोड। देखिए अगर सेल गिवन है तो आप जान सकते हैं कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। ओके, अगर आपको सेल का रिएक्शन दिया हुआ है तब भी हम जान सकते हैं कैथोड क्या है और एनोड क्या है। जो ऑक्सीडाइज हो गया वो क्या है, एनोड, और ये हुआ इसका रिडक्शन, तो कॉपर क्या हुआ, कैथोड, जिंक क्या हुआ, एनोड। ठीक है, फिर देखिए जहां पर इलेक्ट्रोड होगा गैस फॉर्म में, जहां पर इलेक्ट्रोड किसका होगा, गैस इलेक्ट्रोड, तो गैस तो आप यहां पर जोड़ नहीं पाएंगे, तो वहां पे करते क्या है, वी टेक अ प्लेटिनम वायर, सपोर्टिंग वायर, जिसके ऊपर गैस क्या होगी, वो एड्सॉर्ब रहेगी। तो PtH2 गैस, ये हो गया, इस तरह लिखा रहेगा वो। ठीक है, ठीक है ना ये, तो ये हो गया इसका रिएक्शन यहां पर, ये ऐसे, ये हो गया गैस इलेक्ट्रोड्स का, इस तरह रहेगा।
और फिर अगर हम लें मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, एनायन ऑब्लिक एनायन कर दिया मान लीजिए। सपोज आपका सपोज ये है AgCl और ये KCl। अगर ये लिखा हुआ है आपका AgCl ऑब्लिक KCl, तो क्या हुआ यहां पर ये कि AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले सेल को। ओके, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ऐसे करते हैं इसको ये, ठीक, बोलिए। यस सर। ठीक है ना, सब क्लियर हो गया? सब लोग क्लियर है? यस सर। यस। ओके, अब देखिए यहां पर ये इसको रब कर रहे हैं, इसको अब रब कर दें। यस सर। अब लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखिए, when a metal strip is dipped in a solution of its salt, the strip becomes positively or negatively charged. The strip becomes positively or negatively charged with respect to the solution. With respect to the solution. And the potential thus developed is called the electrode potential, of that electrode. फिर लिख दीजिए, electrode potential depends on nature of electrode, second लिख देंगे concentration of ions in the solution, और थर्ड लिख दीजिए टेम्परेचर। थर्ड क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड हो गया टेम्परेचर। फिर लिख दीजिए, if the reaction is of oxidation, the electrode potential
is named as oxidation electrode potential. Is named as oxidation electrode potential. Potential. ठीक है? फिर लिख दीजिए if the electrode potential is measured with 1 m concentration, 1 m concentration and at 298 Kelvin and 1 bar pressure, then it is called standard electrode potential. Then it is called standard electrode potential. ठीक है? देखिए देखिए अगर ये लिखा हुआ है कि Zn gives Zn2 plus +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो रहा है इसका? ये कौन सा रिएक्शन है ये? दिस इज ऑक्सीडेशन. सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आपको दिया है, अगर लिखा हुआ E नॉट, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी लिखा गया है, सपोज अगर हम यहाँ कोई इसकी वैल्यू यहां पर ये, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक. जो रिएक्शन हो रहा होगा उसी के नाम पे क्या उसका होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है? अगर ये लिखा हुआ है, अगर इक्वेशन ये आपका है, ये अगर इलेक्ट्रोड पे ये हो रहा रिएक्शन मान लीजिए, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सपोज मान लीजिए ये अगर लिखा हुआ है ये, तो क्या हुआ? ये हो गया कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हुआ ये? ठीक है? तो जो रिएक्शन होगा उसी के नाम पे क्या उसका होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर वो हाँ क्या हो रहा है? जिंक वाले में क्या हुआ? जिंक वाले में हुआ ऑक्सीडेशन. तो क्या हुआ? ये हो गया जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये E नॉट Zn/Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76 वोल्ट. ठीक है? तो अगर आपको ऐसे गिवन है ये, तो करेंगे आप ये ऐसे बना दीजिए एरो यहां पर, ये कि इससे ये फॉर्म हुआ ये, तो क्या होगा? जिंक से क्या बना? जिंक आयन. तो क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है ये. तो जो पोटेंशियल है वो कौन सा दिया गया है? वो हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इस वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu. तो यहां पर क्या दिया आपको? ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके? इस वैल्यू को, इसको हम चेंज कर सकते हैं. आप ये ऐसे कर दीजिए आप ये, तो क्या हो जाएगा? ये -0.76 वोल्ट. अब क्या हो गया यहां पर? ये भी क्या हो गया? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल.
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा उसी के नाम पे क्या उसका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, सबको आया ये? यस सर। ठीक है, सबको आ गया? अब देखिए कैसे इसको हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ विल यू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसको ध्यान रखिए आप लोग, ये जो रिएक्शन होगा उसी के नाम पे क्या उसका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब लिख दीजिए आप लोग, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ विल यू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखिए, the absolute value of the electrode potential, absolute value of the electrode potential of a single electrode cannot be determined because oxidation half reaction or reduction half reaction cannot take place alone. It can be measured only by using reference electrode, ठीक है? तो जब भी हमको पोटेंशियल निकालना होता है, वी टेक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is taken as the reference electrode. ठीक है, and by convention standard hydrogen electrode potential is taken as 0 volt. ठीक है, तो अगर हम लिखें यहां पर E naught H plus by H2, that is 0 volt. This is by convention. Okay, अब करें इसको। तो बाय कन्वेंशन क्या आपका है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेकन एज 0। ठीक है, इसी को यूज करेंगे एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रब करें इसको, बोलिए। यस सर। अब देखिए आप लोग कैसे इसको मेजर किया जाता है। सपोज
हमको मेजर करना है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां पर ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और यहां पर वो सॉल्ट ले लिया आपने, जिंक सल्फेट हो गया। इसकी मोलैरिटी कितनी है? 1m। 298 केल्विन क्या है? टेम्परेचर है, ओके। और 1 बार प्रेशर है यहां पर। यहां पर ये H2 गैस ले लिया गया। यहां पर क्या है? ये H2 गैस सपोर्टेड ओवर प्लेटिनम वायर, यहां जोड़ दिया गया इसको। यहां इसका पोटेंशियल डेवलप कर लेंगे, यहां पर इसको आप मेजर करेंगे, ठीक है। यहां पर इसका जो वो रहेगा उसको उसका मेजर करेंगे इन द वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये H2 गैस आपका हो गया ये, और यहां पर ये है H2SO4 लें चाहे HCl ले लें आप, ये कितना होगा? 1m, ओके। ये आपका हो गया वोल्ट मीटर ये, ठीक। अब क्या किया आपने? जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया इसके नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको जोड़ दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर रीडिंग आ रही यहां पर ये मतलब सेल वर्क कर रहा है, मींस जिंक क्या हो गया? एनोड, हाइड्रोजन क्या हो गया? कैथोड हो गया, ओके। तो जो भी रीडिंग आपकी यहां पर आएगी वो क्या होगा? वो होगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कौन सा होगा? यहां पर जिंक क्या है? हियर जिंक इज एनोड, हियर जिंक इज एनोड। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? तो जो भी पोटेंशियल आपको यहां, जो भी आपको वोल्टेज दिखेगा यहां पर, ये वो क्या होगा? वो हो जाएगा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जिंक यहां पर क्या है? एनोड। एनोड पे क्या हुआ? एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो जो पोटेंशियल आया है यहां पर ये, वो क्या हुआ? वो हो गया जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। जो भी यहां पर मेजर हुआ वो क्या हुआ? वो हो गया जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मींस ये वैल्यू आपकी आ गई E0 Zn/Zn2 प्लस, ये कितना है? ये 0.76 वोल्ट, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो वैल्यूज हैं, ये जितने फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, उन सब में क्या होगा? वी विल नीड द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उससे इजी रहेगा, जिससे आपको फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना पड़े, ठीक है। तो ये हो गया जिंक का क्या आएगा? जिंक यहां पर एनोड है, तो जो रीडिंग आएगी वो क्या होगी? वो होगी जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम रिडक्शन वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहां आपने लिया कॉपर, सपोज लिया आपने यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहां पर यह हुआ कॉपर सल्फेट मान लीजिए। अब क्या होगा? अब ये होगा, अगर आपने कॉपर को जोड़ दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां टर्मिनल से, और इसको आपने जोड़ दिया विद पॉजिटिव टर्मिनल ये, तो यहां पर अब ये सेल वर्क नहीं करेगा, ये दिस सेल विल नॉट वर्क। अब करना क्या आपको होगा? ये इसको इधर जोड़ना है और इसको इधर जोड़ना है, ठीक है। बताएंगे अभी आपको कैसे आप जान पाएंगे कि सेल फिजिबल है कि नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? अब कॉपर क्या हो गया? कॉपर यहां पे क्या हुआ? कैथोड। H2 क्या हुआ?
एनोड। ठीक है, तो जो रीडिंग आएगी यहां पर कॉपर कैथोड है, तो यहां पर ये होगा उसका रिएक्शन कॉपर इलेक्ट्रोड पे, ये होगा ये। तो कौन सा रिएक्शन यहां पर है, ये यहां पर है रिडक्शन। तो जो पोटेंशियल दिखेगा आपको यहां पर ये, दैट इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, जो होगा 0.34 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से सभी का आप निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद रेफरेंस टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसका 0 वोल्ट है H2 का बाय कन्वेंशन। तो जो रीडिंग आएगी यहां पर वो क्यों आएगी, ड्यू टू कॉपर इलेक्ट्रोड या जिंक जो भी रहेगा वहां पर। ठीक है, ओके। ठीक, क्लियर। क्लियर सर। हाँ, तो ऐसे हम करते हैं, मेजर करेंगे किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो रिएक्शन रहेगा उसी के नाम पे क्या उसका होगा, उसी के नाम पे उसका होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब लिखिए आप लोग चीजें यहां पर, ये सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल। लिखिए द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ two half cells is known as cell potential or cell voltage. Cell potential or cell voltage, and it is called cell EMF or electromotive force if no current is drawn from the cell. If no current is drawn from the cell. ठीक है, देखिए यहां पर करेंगे आप ये, फॉर ए सेल टू बी फिजिबल, जो आपका ई सेल है, आपका ई नॉट सेल होगा, दैट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव। और ई नॉट सेल अगर हम निकालते हैं आप ये, तो ये होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, यहां पे ध्यान सुनिएगा जब बता रहे हैं आपको, यहां पर ये ई नॉट सेल क्या हुआ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये क्या होगा, यहां पर भी हम लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो उसी तरह से रहेंगे, ऑफ कैथोड माइनस यहां पर भी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लीजिए, यहां पर ये ऑफ एनोड। है ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल होता है वहां पर ये, लेकिन जो वैल्यू यहां पर आप लेंगे वो लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, जिस तरह आपका जिंक आया है ना पर ये ई नॉट Zn/Zn2 प्लस, रीडिंग इसकी आई थी हमारी। ठीक है,
इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इसमें कितना हो जाएगा ये -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों का ही लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों क्या लेंगे, दोनों का लेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यस सर। हाँ देखिए, तो ई नॉट सेल पॉजिटिव कब हो जाएगा, ये जब ई नॉट कैथोड क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तभी क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, यस सर। अब देखिए यहां पर ये ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का या फिर जिसका भी रहेगा, सभी का हम निकाल देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर दिया आपने। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा सब लोग, ये मोर नेगेटिव द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, more negative the reduction electrode potential, more is its reducing power, more is its reducing power। ठीक है, या हम कहें कि न्यूमेरिक वैल्यू जितना कम होगा किसका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उतना ज्यादा क्या उसकी होगी, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, उतना ज्यादा क्या उसका होगा, रिड्यूसिंग पावर। तो जो ज्यादा निगेटिव जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, वो मोर क्या होगा उसकी, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, और ऐसे ही सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को जब हम अरेंज कर देंगे इन ए ऑर्डर, we get the electrochemical series, we get the electrochemical series। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो जिसका नेगेटिव, मान लिया पैसे सपोज जिंक है, जिंक का कितना आपका पोटेंशियल यहां पर है, ये -0.76, और ई नॉट कितना है, H2 का 0 है। मीन्स क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इज मोर रिड्यूसिंग देन हाइड्रोजन, जिंक इज मोर रिड्यूसिंग देन हाइड्रोजन, which means that zinc can displace H2 from acids, zinc can displace H2 from acids। ठीक है, because zinc is more reducing than hydrogen, so zinc can displace H2 from it, from acids। अगर हम वहीं बात करें कॉपर की, तो E नॉट उधर लिखते हैं, अच्छा, E नॉट Cu2 प्लस बाई Cu, ये है 0.34 वोल्ट, और कितना है H का, 0 है। तो यहां पर क्या हुआ, H2 इज मोर रिड्यूसिंग देन कॉपर, तो क्या हो जाएगा, कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स, तो Cu प्लस H2SO4, यहां पे H2 डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। तो यहां पर तो अगर ये कंसंट्रेट रहेगा तब ये बनेगा CuSO4, SO2 और H2O। अगर यहां पर ये हो गया, डेल्ट हो गया ये, तो कॉपर उससे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स बिकॉज कॉपर इज लेस रिड्यूसिंग देन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो हम लोग ये एलिमेंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि H के जो नीचे एलिमेंट्स इसका 0 होता है, ये कॉपर है, Ag है, Hg है, Au है और Pt है। दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, और खास करके ये वाले जिनको आप बोलेंगे नोबल मेटल्स। ठीक है, तो मोर नेगेटिव द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर। जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा वो अपने से कम नेगेटिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सबको आ गया? यस सर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? इसको No, ध्यान sir, रखिएगा okay. आप लोग, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों में ही क्या लेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और जब आपको सेल गिवन रहेगा तो आप सेल आप नहीं चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर ई नॉट सेल की वैल्यू वहां पॉजिटिव आ जाएगी तो वो सेल फिजिबल होगा। ठीक है, और जो आपका ई सेल है, जो आपका ई सेल होगा, ये क्या होता है? ये होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ई सेल क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है मालूम है? बताइए, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मालूम नहीं मालूम आपको? बताइए। नहीं मालूम है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब इट डज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव है IN, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो प्रॉपर्टीज क्या हो? इंडिपेंडेंट हो ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, उन्हें बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक डेंसिटी मान लीजिए, सपोज ऐसे है, डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप पानी लीजिए 1 गिलास या पानी लीजिए 1 बाल्टी, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी ना? बोलिए। इसी तरह आपका ई सेल है, इसी तरह आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। बॉइलिंग पॉइंट आपका ऐसे है, ये बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 1 गिलास लें चाहे 1 बाल्टी लें, इट विल बी हाउ मच? 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो Yes, sir. प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी क्वांटिटी पर, उनको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी which depends upon the quantity of matter, like mass, like mass। mass क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। gives free energy, डेल्टा जी कैसे है? डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डेल्टा जी क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मास आपका क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा मास। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा? डेंसिटी या बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये लिखा हुआ है कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, तो यहां पर इक्वेशन कौन सा है? रिडक्शन का। तो जो पोटेंशियल आपका है -0.76 वोल्ट।
ठीक है, अगर आपने इसको 2 से इंटू कर दिया मान लीजिए, अब क्या हो गया, इसका ई नॉट वैल्यू जो है वो वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज। ठीक है, इट विल नॉट चेंज। Yes, sir. ठीक है, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Okay. चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग यहां पर इसमें ये हाउ टू फाइंड सेल पोटेंशियल, ई सेल, कैसे फाइंड करेंगे ई सेल। ठीक है, तो एक आपका ये है नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। ठीक, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF log जो सेल रिएक्शन होगा, जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लॉग यहां पर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। ठीक है, आपका सब कांस्टेंट का हो गया, ये टी कितना ले लिया गया 298 केल्विन, ये तो 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ जो भी प्रोडक्ट्स में आयंस होंगे उनका कंसंट्रेशन अपॉन जो रिएक्टेंट्स में होंगे उनका कंसंट्रेशन। ठीक है, एन यहां पर क्या होगा, एन क्या होगा बोलिए, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और गेन्ड जो भी रहेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और गेन्ड। तो बहुत में क्या होगा आप जान नहीं पाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो वहां पर हम एन जो है ये हम देखेंगे टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगा एन। क्योंकि बहुत जगह आप ये आपको दिखेगा ही नहीं वहां, टोटल चेंज इन द ओएस। ठीक है, हो गया, बताइएगा हुआ ये? यस ये सर। अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपको हाफ सेल दिया है, हाफ सेल क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोड रहेगा, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोड रहेगा, वो क्या हुआ हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल जहां रहेगा वहां पर ऑलवेज राइट द रिडक्शन हाफ। ठीक है, ये आपके इजियर के लिए, इजी होने के लिए आपका है ये, ऑलवेज राइट द रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ। ये इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा ये, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर ये, बट यू ऑलवेज राइट द रिडक्शन हाफ अगर आपको हाफ सेल गिवन है तो, और तब आप निकाल सकते हैं
ई सेल इजीली। एक चीज ध्यान है आप लोगों को, ये इस फॉर्मूले में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.59 अपॉन ये, जो इसकी वैल्यू यहां पर है 0.059, अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाहर एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा, बहुत बार आप इसको लिख लीजिएगा 0.06, बहुत बार यही रखिएगा तो काम हो जाएगा, बहुत बार ये रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। तो ऑलवेज राइट द रिडक्शन हाफ। ठीक है, एक हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन हम लोग लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसमें हाफ सेल गिवन हो। देखिए, कैलकुलेट द electrode potential of a copper wire dipped in 0.1 m of a copper wire dipped in 0.1 m copper sulfate solution, 0.1 m copper sulfate solution at 298 Kelvin. At 298 Kelvin, standard reduction potential of copper is, standard reduction electropotential of copper is 0.34 volt. सबने क्वेश्चन लिख लिया? सबने क्वेश्चन लिखा? बोलिए। यस सर। लिखा? ठीक है, तो यहां पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी चेंज्ड है, 0.1 m है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये हमने क्या लिखा है यहां पर, ये अगर सिर्फ हाफ सेल आपका, जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रोड है, ऑलवेज राइट द रिडक्शन हाफ। क्यों? क्योंकि आपको जो भी पोटेंशियल गिवन रहेगा उसको पहले आप चेक कर लीजिए कि रिडक्शन वाला ही दिया रहे, अगर नहीं दिया रहेगा उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इन द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में। यहां हमको वही गिवन है, यहां पे क्या दिया है, ये कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन हाफ लिखे यहां पर, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। हो गया ये? हो गया? आपको निकालना यहां पर क्या है, ई सेल कितना हो गया, ये ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग, ये आपका हुआ प्रोडक्ट में कॉपर अपॉन कॉपर आयन का कंसंट्रेशन। देखिए, सॉलिड फॉर्म में जो चीज डिसॉल्व नहीं हुई उसका जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज टेकन एज 1। ठीक है, तो यहां पर जो आयन फॉर्म में है सिर्फ वही लेंगे, तो कितना हो गया 0.34 माइनस 0.059 बाई एन। एन कितना हुआ यहां पर
n कितना हुआ बोलिए? 2. 2 log 1 बाय कितना है 0.1. ओके, तो कितना आपका आ गया 0.34 माइनस 0.0295 log 10. तो ये हो गया 0.34 माइनस 0.0295. आंसर हो गया इतना वोल्ट. तो कितना आ गया आपका ये? .3105 वोल्ट हो गया. 0.3105 वोल्ट. ठीक है ना ये? ओके, सबको आया ये? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसको लगाना है आप लोगों को. देखिए एट व्हाट पीएच, सबका हो गया ना ये? देखिए एट व्हाट पीएच ऑफ HCl, क्वेश्चन लिखिए आप लोग. एट व्हाट पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन will hydrogen gas electrode show electrode potential of minus 0.118 volt. minus 0.118 वोल्ट. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपका है ये? एट व्हाट पीएच ऑफ HCl सॉल्यूशन will hydrogen gas electrode show electrode potential of minus 0.118 volt. H2 gas is bubbled at 298 Kelvin and 1 atm pressure. 1 atm प्रेशर आपको दिया गया है और 298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है. बताइए क्या आएगा आंसर इसका? H2 गैस क्या है वो? डिप्ड इन HCl सॉल्यूशन, जिसका आपको निकालना है पीएच. ठीक है, ई सेल आपको गिवन है minus 0.118 वोल्ट. हो जाएगा? बोलिए. बोलिए, हो जाएगा? आशु, यही सवाल किसी ने किया, ये जवाब दो. कनिष्का, खुशबू, कुणाल, मोनू, किसी का आया? मैंने बताया जाए?
देखिए ये है क्वेश्चन आपका, ये यहां पर ये H2 गैस dipped in HCl, H2 गैस dipped in HCl। तो बताना आपको है pH क्या होगा इसका, HCl का। ठीक है, तो हमने क्या बताया, यहां पर भी क्या आपका है, ये हाफ सेल। हाफ सेल में क्या लिखना है, रिडक्शन हाफ, 2H plus 2 electron gives H2। ठीक है, 2H plus 2 electron gives H2। हुआ ये। E सेल कितना होगा, E नॉट सेल माइनस 0.059 by N log of pressure of H2 अपॉन H आयन का पावर 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है आपको, यहां पर जो उसका कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर में रहेगा। ठीक है, कितना है इसका E नॉट सेल, 0 माइनस 0.059 बाई N कितना हो गया, 1। N कितना इसका है, 2। जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसका देखिए, N कितना इसका हो गया, 2। ठीक है, लॉग 1 अपॉन H आयन का पावर 2 हुआ ये हमें गिवन है ई सेल माइनस 0.118 वोल्ट। ओके, तो माइनस 0.118 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, है ना, बोलिए। ठीक है, माइनस 0.059 बाई 2, ये कितना हो गया, लॉग ए की पावर बी कितना होता है, बी लॉग ए। तो कितना हो गया ये, 2 log 1 अपॉन H आयन हुआ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2। तो 2 इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ 1 अपॉन H आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, log 1 अपॉन H आयन क्या होगा, यही क्या होता है, pH। यही क्या हुआ, pH। देखिए pH क्या आपका होता है, ये pH होता है माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसेंट्रेशन। ये कितना हुआ, log 1 माइनस लॉग H आयन इक्वल टू pH हुआ ये कितना हो गया, 0। तो माइनस लॉग H आयन कितना हो गया, pH। ठीक है, तो pH हाउ मच, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात इक्वल है ये। तो क्या आ गया, pH इक्वल टू कितना आ गया, 2। सबका हो गया ये, बोलिए कितना आ गया, pH 2 आया ना। ओके, अब देखिए जहां पर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हों, जहां पर आपको 2 इलेक्ट्रोड्स दिए हों वहां कैसे आप निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द सबका ही क्वेश्चन हो गया ना ये, यस सर हो गया। आगे बोला जाए, अगला क्वेश्चन बोले। थक गए आप लोग,
लिखिए क्वेश्चन लिखिए और देखिए, कैलकुलेट द EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. Cell आपको given है ये CR 0.1 m Fe2 plus, ये आपको सेल गिवन है Cr by Cr3 plus 0.1 m salt bridge, Fe2 plus 0.01 m oblique Fe. ठीक है, गिवन E नॉट, ये गिवन आपको है ये E नॉट Cr3 प्लस बाई Cr, ये दिया हुआ है E नॉट Fe2 प्लस बाई Fe गिवन है। हाँ बोलिए, -0.75 और ये है -0.45 वोल्ट। ये गिवन है, आपको बताना क्या है, ई सेल बताना है इसका। फाइंड ई सेल, सेल ईएमएफ और ई सेल, इस सेल का। हो जाएगा, बोलिए। बताएं इसको। बोलिए, बता जाए, हो जाएगा। देखिए, आपको ये सेल गिवन है ये, ठीक है। जब सेल गिवन रहेगा तो आप जान सकते हैं कैथोड कौन है और एनोड कौन है। जो पहले लिखा है वो क्या है, एनोड, जो बाद वाला क्या है, कैथोड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होगा, बोलिए। एनोड पे क्या होता है रिएक्शन, बोलिए आप लोग। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखे यहां पर, Cr gives Cr3 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 3, 1 एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, वो क्या होगा, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, कैंसिल हो जाइए। तो फर्स्ट वाले में 2 से, इसमें 3 से, ठीक है। तो कितना हो गया, 2Cr प्लस 3 Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस प्लस 3 Fe। दोनों तरफ चार्ज जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। +6 चार्ज। ये क्या आपका आ गया, सेल रिएक्शन। ये क्या आ गया, सेल रिएक्शन। हुआ ये, बोलते रहिए आप लोग, है ना। ये आपका हो गया सेल रिएक्शन, ये वाला ये। अब आप निकाल सकते हैं ई सेल। कितना होगा ये, ई नॉट सेल -0.059 by n log
बताइए क्या लिखें लॉग में यहां पर, बोलिए क्या लिखें लॉग में? CR3 प्लस की पावर 2 अपॉन Fe2 प्लस की पावर कितना 3, हुआ ये? बोलिए। उसके पहले E नॉट सेल फाइंड कर लेंगे। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड का कितना है? कैथोड कौन यहां पर है? Fe। तो -0.45 माइनस -0.75, तो कितना आ गया ये? प्लस 0.30 वोल्ट। ये क्या आपका आ गया? ई नॉट सेल। रख दीजिए वैल्यू यहां पर, तो 0.3 माइनस 0.059 बाई एन। एन कितना लेंगे यहां पर? बोलिए एन कितना लेंगे? आयुष कितना लेंगे एन? वैभव बोलिए। मोनू Sir, 6. 6 कितना लेंगे यहां पर? 6। सबको आया ना ये? देखिए यहां पर कितना है सीआर का ओएस? यहां पर 0, यहां कितना है? +3। चेंज कितने का हुआ? 3 का पर एटम। कितना लिया गया यहां पर? ये 2। तो फॉर 2 कितना हो जाएगा? चेंज ऑफ 6। ठीक है। CR का शुरू में कितना इसका ओएस है? 0। बाद में कितना हुआ? +3। चेंज ऑफ 3 पर एटम। 2 यहां पर सीआर है, तो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ 6। जो इक्वेशन है उसके हिसाब से देखेंगे आप टोटल चेंज। ठीक है। लॉग कितना है इसका? 0.1 m, तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का क्यूब। ये कितना हो गया? बोलिए कितना हो जाएगा ये लॉग? टेन की पावर 4 हो गया। कितना आया? इसको सॉल्व करिए आप लोग। 4 log 10, तो ये हो जाएगा 0.3 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू 4, इतना वोल्ट। इसको सॉल्व किया आप लोग? सॉल्व किया? कितना आया आंसर? क्लास सॉल्व किया? कितना आंसर आ गया? बोलिए सॉल्व कीजिए जल्दी आप लोग। चलो जो भी आपका आएगा ये, ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा वो। ओके। सबका हो गया?
सर माइनस 0.09 वोल्ट। माइनस आएगा नहीं भाई, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा। क्या गड़बड़ हो गई फिर? आप लोग कैलकुलेट कीजिए बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठे ही हो, कैलकुलेट करो, सबको बताओ। तो आपका जाएगा 0.26 वोल्ट। ठीक है, ओके। रानी सबका आ और गया ये? खुशबू ने सही आंसर दिया था पहले भी। 0.261। 0.26। ओके, गुड। अच्छा, अब देखिए यहां पर हम लोगों को लॉग यूज करना पड़ेगा ना ये, ठीक है। अगर कहीं पर हमको इसका निकालना पड़ता कंसंट्रेशन, तो हमको लॉग फाइंड करना मालूम होना चाहिए। अगर आपको लॉग x सपोज दिया है 3.41 और आपको लॉग x दिया है -3.41, तो इसे कैसे आप करेंगे सॉल्व? अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको दो चीजें दी हुई हैं, ये सर एंटी लॉग लेंगे। पहले वाले में क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। x कितना आ गया? एंटी लॉग 3.41। ठीक है। यस सर। अगर लॉग की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, जिसको लॉग देखना ना आता हो, जान लीजिए लॉग x की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव यहां पर है 3.41। तो सीधे आप लिख देंगे कि x इक्वल टू व्हाट? एंटी लॉग ऑफ 3.41। जो नंबर पॉइंट के पहले है 3, वो 10 की पावर में हो जाएगा, और जो नंबर पॉइंट के बाद में है 0.41, जो नंबर पॉइंट के बाद में है 0.41, उसका देखेंगे एंटी लॉग। ठीक है। और जो भी आपको वैल्यू दिखेगी यहां पर एंटी लॉग, इसमें एंटी लॉग में 0.41 में, सपोज अगर हमको दिखा वहां पर 3468, तो क्या मान लेगा ये? 3.468 10 की पावर 3, ये इसका आंसर होगा अगर ये वैल्यू है तो वहां पर। ठीक है, हमने एग्जांपल केवल दिया ये 0.41 का देखेंगे एंटी लॉग, जो वैल्यू दिखेगी उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब यहां देखिए आप, ये log x की वैल्यू हो गई -3.41, तब कैसे देखेंगे इसको आप? ये बोलिए, तब करेंगे क्या आप लोग? ये इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो नंबर पॉइंट के पहले है 3, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो गया? 4 बार हो गया। और जो नंबर पॉइंट के बाद में है 0.41, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, तो हो गया 0.59। तो -3.41 is same as 4 बार 0.59। 4 बार 0.59 का मतलब क्या हुआ? -4 + 0.59।
ठीक है, तो जो नंबर पॉइंट के पहले उसमें 1 पहले ऐड कर दीजिए, उसके ऊपर लगा देंगे बार, जो नंबर पॉइंट के बाद है उसको ऊपर से कर दीजिए माइनस। अब क्या होगा ये, आवाज सबको आ रही आवाज ना? Yes, sir. सबको आ रही आवाज? ठीक, तो अब आपका x कितना होगा, अब आप लिखेंगे एंटी लॉग 4 बार 0.59, ठीक है, तो जो बार में है वो हो जाएगा 10 की पावर माइनस में। फिर यहां पर 0.59 का देखेंगे एंटी लॉग, जो नंबर दिखेगा उसमें भी फर्स्ट डिजिट के बाद लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। अगर आपको 0.59 के एंटी लॉग में सपोज दिख गया 4832, तो 4.832 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये हमने एग्जांपल लिया है, ये एक्चुअल फिगर नहीं है, ये ऐसे करना होगा आपको। क्लियर? ये कुछ सवालों में हो सकता है आपको निकालना पड़े किसी आयन का कंसंट्रेशन, तो वहां पर आपको वो चाहिए होगी वैल्यू, मतलब आपको लॉग निकालना आना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, बोले सबको आ गया लॉग फाइंड करना? एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ये a cell consists of, एक क्वेश्चन लिखिए, a cell consists of 2 hydrogen electrodes. The negative electrode is in contact with a solution of pH 6, in contact of a solution with pH 6. Calculate the concentration of H plus ions. Calculate the concentration of H plus ions at the positive electrode. Calculate the concentration of H plus ions at the positive electrode. Cell EMF is found to be 0.118 volt. Is found to be 0.118 volt. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड हुआ ये बताइए? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? एनोड। कौन सा हुआ? एनोड। एनोड वाले H2 में ये किसमें डिप है? ये इसका हमको दिया है pH 6, ठीक है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड होगा, उसमें जो H2 का है, ये जिसमें डिप है, इसी का H आयन हमको फाइंड करना है। ओके,
और ई सेल जो है ये दिया है 0.118 वोल्ट। ई सेल दिया है 0.118 वोल्ट। ठीक है, हो जाएगा ये। बोलिए। तो जब दो इलेक्ट्रोड सेम हो और अलग अलग क्या हो कंसंट्रेशन, यहां पर यहां पर, तब इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। Cells having same electrode but different concentration of solution, तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। देखिए यहां पर ये एट एनोड, एनोड कौन सा है? निगेटिव इलेक्ट्रोड। वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। H2 ये आपका एनोड वाला है, ये गिव्स 2H प्लस, कौन सा? एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, एट कैथोड वहां पर क्या होगा? 2H प्लस, कौन सा? कैथोड, गिव्स H2 कैथोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 गैस दोनों में ही है, 1 बार प्रेशर है। तो अगर आपने दोनों को ऐड कर दिया यहां पर ये, तो क्या आपका आ गया? 2H प्लस कैथोड गिव्स 2H प्लस एनोड। हो गया ये क्लियर? अब ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ, क्या आपका आएगा? H आयन एनोड पावर 2 अपॉन H आयन कैथोड पावर 2। हुआ ये आपको दिया 0.118 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना इसका हो जाएगा? बोलिए यहां पर ई नॉट सेल कितना होगा इसका? बोलिए कोई। 0 वोल्ट। दोनों का सेम क्या है? इलेक्ट्रोड यहां पर ये, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कितना हो गया? 0 वोल्ट। हुआ? आपको पीएच दिया हुआ है 6, क्या मतलब हुआ इसका? एच आयन कितना होगा यहां पर? अगर पीएच गिवन है 6 तो व्हाट विल बी एच आयन? बोलिए 10 to the power minus 6 m होगा ना ये? बोलिए पीएच गिवन कितना है? 6, तो कितना हुआ उसका एच आयन? 10 to the power minus 6। रखेंगे वैल्यू हम लोग यहां पर। अब ये 0 माइनस 0.059 बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों देखिए है यहां पर ये, सॉरी उतर गया भाई यहां पर, ओ सॉरी यहां 2 इलेक्ट्रॉन ये है ना। ये कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ये लिखना पड़ेगा लॉग ऑफ एच आयन ऑफ एनोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड कितना है इसका एच आयन? तो इसको हम ऐसे लिख दें यहां पर, ये एच आयन ए अपॉन एच आयन कैथोड होल पावर 2 लिख दें इसको। तो ये हो गया माइनस 0.059 बाई 2। ये कितना हो गया? 2 लॉग एच आयन कैथोड ये एनोड अपॉन एच आयन कैथोड। 2 और 2 कैंसिल हो गया इससे, तो 0.118 इक्वल टू 0.059 माइनस आपका यहां पर है ये लॉग
एच आयन एनोड कितना है 10 to the power minus 6 अपॉन एच आयन कैथोड, ये फाइंड करना है। ठीक है, देखें यहां पर आप ये कितना आ जाएगा -2 आ गया। कितना आएगा ये -2 इक्वल टू log ऑफ 10 to the power minus अपॉन एच आयन एट कैथोड, मतलब एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हो गया -2, you can write it as log 10 to the power -2 is how much -2 equal to log of 10 to the power minus upon H ion at cathode। तो क्या इससे आ गया 10 की पावर -2 इक्वल कितना आया तो इससे हमारा आ गया H ion कंसंट्रेशन एट कैथोड कितना जाएगा ये 10 की पावर -4 m। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो जब अगर इलेक्ट्रोड सेम रहेंगे तो और डिफरेंट क्या होगा उसका कंसंट्रेशन। तो यहां से कितना है इस वाले में एच आयन कितना है इनका -6, यहाँ कितना है इनका -4। तो अगर इलेक्ट्रोड सेम है और डिफरेंट क्या है कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। ओके, यहां तक किसी कोई डाउट? बोलिए। नो सर। किसी को कोई डाउट हो अर्थमेटिक पार्ट में या केमिस्ट्री वाले पार्ट में बताइएगा, सब सॉल्व किया जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? सर वेरी गुड। थैंक यू सर। ओके, क्लास सर आपने सर इतने एलैबोरेट तरीके से पढ़ाया है सर, बच्चों के कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए। और सर मेरी ये उम्मीद है कि बच्चे दोबारा से जब इन सब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे तो इनको जो है सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगा। और सर आज की क्लास सर बहुत अच्छी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और कोई सर doubt होगा इसमें? आपसे अभी सर ये कल half हुआ है। काइनेटिक्स क्लास की भी अच्छा। बच्चे जो है सर उसमें भी जुड़ने के लिए काफी ज्यादा इच्छुक हैं सर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी हुआ नहीं है ये? थैंक यू सर, भैया। थैंक यू क्लास। ओके ओके, थैंक यू। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर से टाइम पे केमिकल काइनेटिक्स में। हाँ जी ओके, जी जी। All of you, all the students, let's meet tomorrow for chemical kinetics class. at 12:10। इसी कंटिन्यू करें। मैम कैन वी हाँ बच्चे क्या बोलो? मैम क्लास लीव कर सकते हैं? Now you all can leave. Thank you. हाँ Okay, बच्चे ma'am. अब क्लास लीव कर लो। बस ये जो Okay, आज ma'am. पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करना, Thank you, प्रैक्टिस करना इसको बच्चे। रिवाइज practice करना, से जो चीजें भी और ना सुधर- आए पूछिएगा, जो भी ना आए पूछिएगा। ठीक है, ओके मैम आंसर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Okay, बच्चों। Yeah, thank you. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू। Okay, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बच्चों। टाटा। Good afternoon.